Anyways, I've started the recording. As this is the first day, we've started slightly earlier. So I'm Shalini Chowcharia and I live in Calcutta with my family. I have my husband, my in-laws. I have a daughter who's studying in college. So that is about me. And I would request actually कि आप लोग भी अपने लिए थोड़ा थोड़ा कुछ बताइए. Why are you doing this course? Why do you want to learn about the magic? Come on, let's start. Why do you want to learn about the magic? किस लिए पढ़ना है? Should I say? Please start. I'm Shweta Agarwal. I stay with my family. Actually, I want to learn magic so that I can just manifest whatever I want. That's nice. Do you know what you want, or do you want to go with the flow and then you will realize what you want? There are certain things which I know. I mean, I'm there. Actually, I want to go with the flow also. All right. Very nice. Very nice. So, Sunita Di, why are you here? You're doing it again. I don't know how many times have you done it before, but Just one. okay, nice, very nice. So why are you doing it again? So I want to be in that continuous mode of positivity. That's nice. I can also manifest whatever I desire for. Oh, that's very nice. So obviously, since you've come back, आपको लगता है कि हाँ ये करने से मेरी इच्छाएं थोड़ी बहुत पूरी हो सकती हैं या हो रही हैं? नहीं हो सकती है, हो रही है, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात मेरे लिए ये रहती है कि मैं हमेशा एक ग्रेटिट्यूड के मोड में रहती हूँ और मैं पॉजिटिव रहती हूँ. That's So very that nice. negativity is out of me. That's so nice. At least you can say कि yes, negativity is totally out of you. I'm not saying totally, but even if 10%, 20%, 30%, I am better off, na? नहीं नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि पूरा नेगेटिविटी That निकल is गया? why दैट इज ऑल वी आर एस्पायरिंग फॉर, that is isn't why it? I'm doing this magic classes again and again, so that एकदम totally eradicate हो जाए एकदम वो. एकदम करना ही है, वो ही करना है. वी आर ऑल एस्पायरिंग फॉर दैट ओनली. एंड कोशिश तो जरूर है कि कोई दिन हम लोग उस जगह पहुंच जाएंगे where we can say that yes. चलिए, ओके. This is what we are going to start reading. This is the book called The Magic by Rhonda Byrne. Okay, I would recommend you to at least buy one copy of this book in any language that you want. You can buy it in Hindi, you can buy it in English. उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है. एकदम सिमिलर है दोनों बुक्स, कोई वो नहीं है. आप जो लैंग्वेज में चाहे खरीद सकते हो. बिकॉज अभी तो हम बुक रीडिंग करेंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा. हमने पीडीएफ भी भेजा है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं. बट जब आप वो बुक को हाथ में रखते हैं और जब आप इस बुक को खरीदते हैं, तो उससे क्या होता है? यू आर पेइंग फॉर इट. व्हेन यू आर पेइंग फॉर इट, यू आर शोइंग योर अप्रिसिएशन to the author, to the publisher, to all the distributors, to all the retailers, जिनसे भी आपने बुक खरीदी है. पूरा जो साइकिल है, आप उस इंसान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं. पेइंग फॉर दिस बुक इज योर वे ऑफ शोइंग अप्रिसिएशन कि थैंक यू आप मेरे इस बुक को मेरी लाइफ में लेकर आने के लिए. ठीक है. सो एंड बाकी इट इज अप टू यू. आप देखेंगे जैसे जैसे वी गो फर्दर ना, आपको समझ में आएगा हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव दिस बुक विद यू. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट शेयरिंग आवर स्क्रीन. This is the book that we are reading. I would please like one of you, just one of you, to volunteer to read today. Every day somebody has to read. तो कोई भी एक जन अपने आप को वॉलंटियर कर सकते हैं पढ़ने के लिए.
I can read Shalini, but I have a very bad throat. I कोई cannot दिक्कत view. I cannot view it. I don't know why. I cannot enlarge it. You are reading from the phone, No, no, from the laptop. तो enlarge नहीं हो रहा है आपका. No. आप Zoom में एक बार जाके या तो एक बार वापस बंद करके Yeah, फिर let me see the. I'll check the phone. Just wait. हिंदी में देखिए ये बुक जादू के नाम से अवेलेबल है. हाँ, okay, let's start. So, you want me to start from? Shall I हाँ, read? we will, yes, you please, you can read. See, this is The Magic by Rhonda Byrne. Let's start. One word changes everything. Okay, Okay. please start. For more than 20 centuries, words within a sacred text have, I don't know, this word is hiding. I cannot Mystified, have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. yes. In the magic, sorry. एक minute, Shweta. After every paragraph ना, just give a halt, okay? Okay. तो क्या बोल रही हैं यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि मतलब बहुत सेंचुरी से कोई एक टेक्स्ट है, वो हम लोग अंदर पढ़ेंगे बुक में, कि जिसने सबको ना बहुत कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि क्या बोल रहे हैं. इट्स लाइक अ रिडल. व्हाट इज इट? व्हाट इज इट दैट क्लेम्स टू चेंज आवर लाइफ? क्या करने से हम लोग वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम लोग चाहते हैं? ठीक है. सो दैट इज व्हाट रोंडा बर्न इज ट्राइंग टू टेल अस कि बहुत सेंचुरी से ये एक टेक्स्ट है विच इज हिडन. या तो लोगों ने इसको सामने आने नहीं दिया है, या हम लोग इसको समझ नहीं पाए हैं. क्या कारण है कि हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं? ठीक है. तो वंस यू अनकवर द मिस्ट्री, जब मतलब जैसे ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है वो चीज, हम लोगों का सब कुछ चेंज हो जाएगा. आवर लाइफ विल चेंज. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. In the magic, Rhonda Byrne reveals Rhonda Byrne. Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. यस. अब बोल रहे हैं कि रोंडा बर्न हम लोगों के सामने ये मिस्ट्री को अनफोल्ड कर रहे हैं. ठीक है. रोंडा बर्न हम लोगों को बता रही है ना, एक्चुअली ये जो भी कुछ इस बुक में है, ये हम लोग, आप बोलेंगे हम लोगों को सबको पता है. जैसे जैसे ना हम लोग एटलीस्ट द फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, या अगर आपने वो सीक्रेट मूवी भी देखी है तो आप लोग बोलेंगे उसमें ऐसा क्या था. ये तो हम लोगों को मालूम ही है कि अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा. ये तो भगवान जी गीता में भी बोलते हैं, कुरान में भी लिखा है, सब जगह लिखा है. यस, ये हम लोगों को बचपन से बोला गया है कि बेटा अगर अच्छा बनोगे तो अच्छा पाओगे, जो दोगे वो पाओगे. यू वॉट एवर यू सो शैल यू रीप. ये हम लोगों को सबको पता है, लेकिन क्या हम लोग इसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं? क्या हम लोग अपने लाइफ में, हम लोग आज सबको बोलते हैं, हम लोगों को किसी ने कुछ दिया, हम लोग बोलते हैं थैंक यू. बट क्या हम लोग एक्चुअली उसको मन से, दिल से बहुत दुआ दे के बोलते हैं कि थैंक यू, तुम्हारा बहुत भला हो? किसी ने अगर, चलो एक पानी का ग्लास लाया, आप अपने फोन पे हैं, फोन पे कुछ कुछ टाइप कर रहे हैं, किसी ने पानी का ग्लास रखा, उसकी तरफ देखते भी नहीं, आपको पता भी नहीं है कि कौन लेकर आया है पानी का ग्लास.
फोन देखते देखते शायद, क्योंकि आपको मालूम है आपको थैंक यू बोलना है, फोन देखते देखते थैंक यू बोल देते हैं, वो इंसान चला भी जाता है। वो पानी का ग्लास आपने मंगाया है, बट क्योंकि आप अपने फोन में इतने इन्वॉल्व हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है। एम आई करेक्ट? Very true. Isn't it? तो हम वैसा ही करते हैं। तो what is Rhonda Byrne going to teach us here? She is going to teach us how to apply that knowledge, that mystery in our life and change our life for the better. ठीक है, आज हम ये पूरा 1 महीना, मोस्टली पीपल ट्राई टू कंप्लीट इट इन 30 days, 28 days का हमारा प्रैक्टिस होता है। 1 या 2 दिन का इंट्रोडक्शन होता है और 1 दिन का कंक्लूजन होता है। तो आई जनरली टेक अबाउट 31 days टू कंप्लीट। वी माइट टेक मे बी half a day more, I don't know, but we will try to complete it by 31 days maximum. ठीक है, please continue. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. Yes. Now what are they trying to tell us? कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, आप का रिलीजन क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप इंडियन हैं, आप अमेरिकन हैं, आप चाइनीज हैं, आप स्वीड हैं, आप फिनिश हैं, आप अफ्रीकन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2 साल के बच्चे हैं, कि आप 60 साल के हैं, कि आप 90 साल के हैं, कि आप एकदम प्राइम में हैं, 30 years के हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहाँ रहते हैं, आपकी जेंडर क्या है, आप मैन है, वुमन है, ट्रांसजेंडर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नथिंग मेक्स अ डिफरेंस। द ओनली थिंग दैट विल मैटर इज हाउ यू अप्लाई दिस लॉ इन योर लाइफ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। द मैजिक बाय रोंडा बर्न। यस। By this means, you will acquire the glory of the whole world. The Emerald Tablet. Yes. What is the Emerald Tablet? Emerald Tablet is an ancient text. Ancient, बहुत पुराना, जैसे हमारे पुराण हैं, हाँ, हमारे वेदास हैं, हमारे जो भी एपिक्स हैं जो इतने पुराने पुराने हैं, उसी तरह से एक एमरल्ड टैबलेट है विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी एंशियंट टेक्स्ट। इसको ना इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत मानते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर हिंदी में बोले, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। By this means you will acquire the glory of the whole world. By what means? जो हम इस बुक में पढ़ेंगे, ठीक है, उससे आप जो चाहे पा सकते हैं। आपको पूरी दुनिया याद करेगी, आप जो वैभव चाहें, जो यश चाहें, आप अगर चाहते हैं कि मैं बहुत फेमस बनूं, मेरे को पूरी दुनिया जाने, आई वॉन्ट टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, या आई वॉन्ट टू बिकम सच अ सोशल वर्कर कि लोग मुझे मदर टेरेसा के जैसे याद करें, आप जो चाहें। आपको चाहिए कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूं, अगर आपको चाहे कि मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनूं, या आप चाहें कि मेरे को एक स्कूल खोलना है जहां पे मैं निस्वार्थ बच्चों को पढ़ा सकूं, आपको जो चाहिए आप वो पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं वो हम अंदर पढ़ेंगे अभी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. यस, अब देखिए रोंडा बर्न ने क्या किया है। शी हैज डेडिकेटेड दिस बुक टू यू, टू अस, टू ऑल ऑफ अस in the world. She is saying that may this book bring you whatever you want, because she knows that this book has the power,
This has the power to give us all that we want. Okay, now we're not going to read acknowledgements. अगर आप चाहें तो आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं. I would actually recommend all of you to read it, because आप देखेंगे उन्होंने कितनी माइन्यूटली याद रखा है एक एक इंसान को, जिन्होंने भी इस बुक को लिखने में उनकी मदद करी है. दिस पार्ट ऑफ द बुक, द एक्नॉलेजमेंट, शोज अस कि हम लोग किस तरह से हम लोग हर एक उस इंसान के लिए, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं जो हमको हमारे लाइफ में मदद करता है हर वो चीज पाने के लिए जो हम पाना चाहते हैं. शी हैज रिमेम्बर्ड ईच एंड एवरी पर्सन, एंड उन्होंने नाम लिख लिख कर सबको अक्नॉलेज किया है. ठीक है, अक्नॉलेजमेंट इज हर वे ऑफ थैंकिंग देम. ठीक है, नाउ वी नॉट गोइंग टू रीड द कंटेंट्स, विल जस्ट लुक एट इट. देखिए 4 चैप्टर्स हमारे इंट्रोडक्शन के हैं, फिर 28 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे 28 डेज की प्रैक्टिस है, एंड फिर उसके बाद कंक्लूजन है. ठीक है, each day we will read 1 chapter. Now introduction we will complete in 2 days, then we will start with 1 chapter daily. उसमें जो भी असाइनमेंट्स या जो भी प्रैक्टिस है वो एकदम शिद्दत से आपको करनी है. जैसे बोला जाता है वैसे ही करना है. जो लिखना है तो लिखना है. आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मैं तो बिना लिखे ही मैं मन में सोच लेती हूँ एंड वो ही मेरा प्रैक्टिस हो गया. नहीं, अगर लिखना है तो लिखना है, बोलना है तो बोलना है, सोचना है तो सोचना है. जैसे इस बुक में बोला गया है हम प्रैक्टिस एकदम एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे. ठीक है, तभी हम जो पाना चाहते हैं. नहीं तो ना क्या होगा कि आप सिर्फ मेरे को सुन रहे हैं, आप वैसा नहीं कर रहे हैं, और फिर आप बाय द एंड ऑफ द 10 days यू विल से कि है कुछ नहीं होता, सब रबिश है, पहले भी हम सुन चुके हैं, कभी कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे भी सबने बहुत बोला होगा होगा, कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है, मैं तो नहीं कर रही. जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना अपनी लाइफ में, खाली सुनने भर से नहीं होगा. एंड एक चीज जरूर याद रखिए, दिस इज नॉट ज्ञान दैट आई एम गिविंग यू हियर. इट इज नॉट ज्ञान. ठीक है, इट इज जस्ट जैसा आप सीख रहे हैं मैं भी वैसे ही सीख रही हूँ. आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई एम स्टिल लर्निंग. ठीक है, इट इज जस्ट दैट कि मेरे को लगता है कि जितने जन इसको सुने, जितने जनों के लाइफ में थोड़ा भी पॉजिटिविटी आए, तो वी मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. ठीक है, सो दैट इज वाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू. आई एम ट्राइंग टू लर्न अलोंग विद यू. ठीक है, so please continue. Do you believe in magic? Yes. ये देखिए, what is this picture trying to show us? It's जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, this is a road, एक स्ट्रीट है, दोनों तरफ पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, और एकदम लास्ट में देखिए रोशनी है, बहुत सारी रोशनी है. क्या है इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जो रास्ता है, हम लोग एक नई जर्नी में शुरू हो रहे हैं, अभी आज एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ इट देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट. व्हाट इज दैट लाइट? दैट इज द लाइट ऑफ पॉजिटिविटी. जहां हम पहुंचेंगे एंड जब हम बहुत पॉजिटिविटी में पहुंच जाएंगे, बहुत हम अपने दिमाग से थोड़ा भी अगर हम वो नेगेटिविटी को दूर कर देंगे. नेगेटिविटी क्या होता है? नेगेटिविटी इज all the emotions which don't make us feel good. ठीक है, positivity is everything that makes you feel good. ठीक है, starts with satisfaction. satisfaction अगर आपको है तो आपको क्या लगेगा? हाँ, मैं संतुष्ट हूं, मेरे को जो चाहिए वो है मेरे पास. that is the first CD of positivity. ठीक है, उसके बाद आपको जो भी, आप बहुत खुश हैं, वाओ. ठीक है, आप कोई भी काम, आज जैसे आपने ये नई बुक शुरू करी है, आप एक नई जर्नी में स्टेप आउट कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एंथुजियाज्म होगा, थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी.
हाँ, एक्साइटमेंट है कि क्या मैं आज क्या सीखूंगी, तभी आई थिंक आप लोग इतनी सुबह उठे हैं, हमको ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको अंदर अंदर से कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट है, isn't it? You want to do it. ठीक है, gratitude is one of the major expressions of positivity. हाँ, and सबसे ऊपर आता है love. I will share the chart also with you. ये पूरा एक चार्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी फीलिंग्स हैं जो हमको पॉजिटिविटी में रखती हैं, कौन कौन सी फीलिंग्स हैं जो नेगेटिविटी में रखती हैं। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ दिस जर्नी, या जैसे जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम उस रोशनी की तरफ जाते जा रहे हैं। रोशनी क्या है? पॉजिटिविटी की रोशनी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Those who don't believe in magic will never find it. रोआल्ड डाल, ठीक है, ही इज अ राइटर ना। क्या बोला गया है? दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। नाउ सी, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस जिससे कि रोंडा बर्न ये बुक शुरू कर रही हैं। इसको अगर हिंदी में बोले, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। आप भगवान जी में विश्वास करते हैं, तभी आपको कोई भी कुछ भी चाहिए तब आप उनके सामने हाथ जाके जोड़ते हैं, भगवान जी आपको, क्योंकि अंदर से मालूम है कि अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो मेरा ये काम हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई चीज, आपका मन आपको अच्छा नहीं लग रहा, आज आपका दिल भारी है, आपको लग रहा है कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ओ भगवान प्लीज मेरा ये काम बना दो। हाँ, आपको कुछ चाहिए, हाँ, आपको कहीं एकदम टाइम पे पहुंचना है, भगवान जी आज मैं टाइम पे पहुंच जाऊं प्लीज। एकदम सिंपल सा, एकदम छोटी छोटी चीज पे हम लोग यही बोलते हैं ना, क्योंकि हमको अंदर से फेथ है। फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज आप कोई दवाई लेते हैं, इफ यू नॉट फीलिंग वेल, इफ यू टेक अ मेडिसिन, you will only get well when you know that yes, that medicine will work for me। जब आपको उस पे विश्वास होगा। एक नॉर्मल पुदीन हरा या अमृत धारा की गोली का ही मैं आपको बताती हूँ। अमृत धारा की गोली है, मेरे यहाँ पे सबको विश्वास है, हाँ सब लेते हैं, और मेरे को लगता है बिकॉज मैं बचपन से वो पुदीन हरा की लिक्विड लेकर मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे लगता है नहीं मेरे को तो वही अफेक्ट करेगा, मैं तो उसी से ही ठीक होंगी, मेरे को उस पे फेथ है। तो मैं वो एक बूंद वो लेती हूँ, मुझे लगता है वाओ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो जो भी चीज पे आप विश्वास करेंगे वो ही आपके लाइफ में काम करेगी। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाट रोआल्ड डाल इज ट्राइंग टू टेल अस कि दोज हु डोंट बिलीव, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे इट विल नॉट वर्क फॉर यू। इट इज ओनली व्हेन यू बिलीव इन इट कि ये काम करेगा। ठीक है, इसीलिए हमने पहले से बोला है आपको कि आपको एकदम दिल से इस पे विश्वास करना होगा, दिल से काम करना होगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. यस, अब अगर आप, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, हम लोग जब छोटे थे ना, हर चीज, चंदा मामा को देख के खुश हो जाते थे, उनमें ना वो जो स्पॉट्स होते हैं उनमें हम उनका चेहरा ढूंढते थे। यू रिमेम्बर, हम लोग बादलों में फिगर्स ढूंढने की कोशिश करते थे, राइट? फ्रिज का गेट बंद करते हैं, कब तक लाइट चालू रहेगी। यू रिमेम्बर ऑल दोज थिंग्स, Yeah. बचपन में करते थे ना। हाँ, हर अभी भी आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, हर वो चीज, वो सो रहे हैं, उनके चेहरे पे स्माइल है, या पता ही नहीं क्या देख रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। एक छोटा सा कोई कार्टून भी देखते हैं ना टीवी में, कितना जोर जोर हंसते हैं, राइट? कोई कोई बड़े जनों को कभी बोलते सुना है क्या बात पे हंस रहे हैं?
बावला है बच्चा। सुने बड़ों को बोलते हुए कभी इस तरह से? क्या बात है हंसने का यहाँ पे? बिकॉज बच्चों को अपने को नहीं पता, उनको हर वो चीज, क्या चीज में उनको वो मैजिक दिख रहा है, उनको क्या चीज फैसिनेट करती है, अपने को नहीं पता। बट उनको वो हर छोटी छोटी चीज, मतलब हर चीज वो कितना ध्यान से देखते हैं, पलट के देखते हैं, उधर देखते हैं, खोलने का कोशिश कर, उनको हर चीज फैसिनेटिंग लगती है कि नहीं है? जब हम लोगों का दांत टूटता था, हम लोग मतलब कितने खुश हो जाते थे, दांत टूट गया, उसको मट्टी में गाड़ना, हाँ, उसको तकिए के नीचे लेके सोना। याद है ना? दांत आना शुरू होता था, क्या भागते थे पूरा घर में, सबको बोलते थे मेरा दांत आ रहा है, दांत आ रहा है, दांत, कितना नयापन लगता था उसमें, है कि नहीं है? प्लीज कंटिन्यू। You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. प्लीज कंटिन्यू। Reindeer could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams came true. And you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits. And you believed that life was magical. यस, अब अभी भी आप देखेंगे कुछ कुछ चीजों में ना, हम भी अभी भी विश्वास करते हैं। हर दिवाली पे हम लोगों को विश्वास है कि लक्ष्मी जी हमारे घर पे आएंगी ही आएंगी, है कि नहीं है? हम लोग एक छोटा सा दीपक तो जरूर चास के रखते हैं दिवाली वाले दिन, कि भगवान जी जब आएंगी तब उनके लिए कुछ रोशनी होनी चाहिए घर में, है ना? तो ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे, उनको आप मतलब उनको ये नहीं लगता कि हम लोग ये नहीं कर सकते। दे नो दैट दे कैन डू एवरीथिंग। वो मेक बिलीव स्टोरीज, टीचर स्टूडेंट खेलना, घर घर खेलना, हाँ, कुछ भी स्टोरीज, कितनी स्टोरीज, मम्मी आज हम लायन बनेंगे, आज आप ये बनो, आज मैं ये बनूंगी, ठीक है, मतलब कितना सारा स्टोरीज होता था, एंड दे बिलीव्ड एवरीथिंग। वो छोटे छोटे कप्स एंड सॉसर्स में हम लोगों को चाय लाके सर्व करना, हाँ, पियो पियो, एंड आप पी भी लेते थे बच्चे के साथ में, बच्चे के साथ बच्चे बन जाते थे, है कि नहीं है? ठीक है। सो एज वी स्टार्टेड ग्रोइंग अप, कहीं ना कहीं हम बड़ों से सुनते थे, तुम बड़े हो रहे हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, इतना बेकार का मत हंसो, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़ी मेहनत करो, हाँ, जिंदगी बहुत कठिन है, बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि नहीं है? हम ये सब कुछ सुनते सुनते ना अपने वो मेक बिलीव की दुनिया भूल गए। हम भूल गए कि हमको हर वो छोटी छोटी चीज में खुशी मिलती थी, है कि नहीं है? प्लीज कंटिन्यू। There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why we, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. यस, हम जैसे जैसे And बड़े होते गए ना, हम एक्चुअली दुनियादारी में घुसते गए, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, कंपटीशन, मेरे को उससे बेटर करना है, मेरे को उससे बड़ा बनना है, हाँ, थोड़ा वर्ल्ड प्रेशर हो गया, फैमिली का प्रेशर हो गया, थोड़ा पीयर प्रेशर हो गया, हाँ, थोड़ा खुद का प्रेशर हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमारे एस्पिरेशंस बढ़ते गए, ठीक है। तो कहीं ना हम वो मैजिक्स को भूलते चले गए, हम, और हम ऐसा भूलते चले गए ना कि हम पूरा एकदम अपने आप को एक लॉजिकल वर्ल्ड में हमने इमर्स कर दिया, हर चीज का हम कारण ढूंढने लगे। हंसना है तो हंसने का कारण क्या है?
Why should I laugh? हमको कुछ कारण तो दो हंसने का, तब तो मैं हंसूं। और वो छोटा बच्चा है, वो तो बिना कारण हंसता है। कभी नोटिस किए हैं जब आप उस बच्चे के साथ, आप 2 साल के बच्चे के साथ होते हैं, आप खुद कितना हंसते हैं? बिकॉज हमको, वी ऑल वॉन्ट टू बी दैट चाइल्ड, लेकिन हम भूल गए हैं कि हमको वो छोटा बच्चा कैसे बनना है। ठीक है, तो वी विल ब्रिंग दैट चाइल्डहुड बैक, दैट इन्फेंटहुड बैक। 4-5 साल का बच्चा भी आजकल तो, मतलब यार मैं 4-5 साल का क्या बोलूं, मेरी एक 1.25 साल की नीस है, वो स्कूल जाती है, वो क्लासेस में जाती है। वो जब तक 2 साल की होगी, वो शायद 4 क्लास में जाएगी और वो स्कूल भी जाएगी। तो जब वो स्कूल जाने लगेगी तो क्या होगा, उसका एक रूटीन हो जाएगा, है कि नहीं? उसका रूटीन हो जाएगा, उसको टीचर्स बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे मत बैठो, तुम ऐसे हंस नहीं सकती, तुम ऐसे रो नहीं सकती, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट करेक्ट। क्या होगा, वो 4 साल के तक जब तक पहुंचेंगे तब तक उनका वो मैजिकल वर्ल्ड तो खो जाएगा, है कि नहीं? और कहाँ घुस जाएंगे, लॉजिक्स की दुनिया में घुस जाएंगे। जहां लॉजिक होगा वहां मैजिक नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को लॉजिक को भूल जाना है। ठीक है, वी विल फॉरगेट that logical world for the next 30 days and immerse ourselves in the world of magic. ठीक है, please continue. I'm here to tell you that the magic you once believed isn't true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you've seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. Yes. अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि आपकी जिंदगी भी एकदम मैजिकल हो सकती है, जो आप चाहें वो आप पा सकते हैं। बट कैसे पा सकते हैं? जब आपको पता होगा कि आपको क्या करना है कि आप अपने सपनों को हासिल कर सके। व्हेन यू नो व्हाट टू डू टू ब्रिंग फोर्थ द मैजिक। तो अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, यू मे नॉट सी रेनडियर्स फ्लाई, हो सकता है, देखिए ऑब्वियसली इतने तो अब हम लोग बड़े हो गए, हम लोगों को मालूम है कि रेनडियर्स फ्लाई नहीं करेंगे। बट कहीं ना कुछ तो होगा कि हम जो चाहेंगे हम वो पा सकते हैं। मतलब द वर्ल्ड विल अलाइन। वो ओम शांति ओम का वो वाला डायलॉग शाहरुख खान का याद है ना, पूरी कायनात जुड़ जाती है मेरे सपनों को, जो चीज मैं चाहूं शिद्दत से। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द डायलॉग, आई थिंक आई विल हैव टू रिमेम्बर इट। अल्केमिस्ट का था, फ्रॉम द बुक अल्केमिस्ट। हाँ, पाउलो केलो की बुक है उसमें, लेकिन शाहरुख खान ओम शांति ओम में हिंदी में बोलते हैं कि पूरी कायनात जुड़ जाती है उसमें। इट इज द, मतलब द हेवेंस एंड द अर्थ अलाइन टुगेदर, एवरीथिंग अलाइंस टुगेदर। हर कुछ आपके हिसाब से धीरे धीरे करके जुड़ना शुरू हो जाता है कि आपके सपने पूरे हो सकें। इसमें क्या है कि ये चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी, दैट वी कैन नॉट गो फॉर द हाउ। हमको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, हमको सिर्फ बिलीव करना है कि होगा। ठीक है, इसीलिए देखिए रोंडा बर्न ने फर्स्ट सेंटेंस बुक में यही बोला है, दोज हु डू नॉट बिलीव। ठीक है, तो बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। Let's start. Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. A great mystery is revealed. Shweta, please start. Now, the following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries.
Yes, please Whoever continue. has Yes. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Yes, अब देखिए जब हम इसको पढ़ते हैं ना कि whoever has will be given more and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको क्या लगता है कि आज मेरे पास कुछ है तो मेरे को और दिया जाएगा. मतलब जो लोग रिच हैं उनको और रिचनेस मिलेगी, जो लोग गरीब हैं वो लोग और गरीब होते जाएंगे. है कि नहीं? ये पढ़ के तो यही समझ में आ रहा है ना कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा. ठीक है, मतलब जिसके पास पैसे हैं उसके पास और पैसे आएंगे, उनके पास और अबंडेंस होगी. जिनके पास पैसों का अभाव है उनके पास और अभाव होगा, और उनके पास जो है वो भी उनसे ले लिया जाएगा. ये पढ़ के तो यही समझ में आ रहा है, और आप ये बोलेंगे कि दिस इज सो अनफेयर. है कि नहीं है कि गरीब और गरीब होते चले जाएंगे, अमीर और अमीर होते चले जाएंगे, तो डिस्पैरिटी तो बढ़ती चली जाएगी. है कि नहीं है? ये तो यही पढ़ के समझ में आ रहा है. तो देखिए आगे इसमें क्या मिस्ट्री है. लेट्स सी, प्लीज कंटिन्यू. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know a new world will have opened up for you. Yes. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken away from him or her. Yes. अब अगर हम वो जो हमने पढ़ा वहां पे अगर हम ग्रैटिट्यूड इंसर्ट करते हैं तो देखिए कैसे पूरा टेक्स्ट चेंज हो जाता है. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. इसको अगर हिंदी में पढ़ें, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा. जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा. ठीक है, तो जस्ट एकदम सिंपल सी बात है कि जो भी आपको मिला है, आप बोलेंगे नहीं आज तो मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे को जो चाहिए. आज अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो हमारे पास फोन भी है, हम पढ़ पा रहे हैं, हम शायद हम इतनी सुबह उठ रहे हैं तो आई एम हेल्दी ऑल्सो. मेरे पास सब कुछ है, मेरे को और क्या चाहिए? तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ग्रेटफुल हुए हैं. ठीक है, तभी आज आपके पास जो भी है वो है, जिसके लिए भी आप बोल सकते हैं दैट यस आई एम रिच. यू कैन बी रिच in any area of our life. We should actually aim for wholesome richness. So health, relationships, money, these are the three major areas of our life. Wait a minute, I will just unmute everybody. Shweta, you can mute yourself, okay? Mute all. Shweta, you will unmute yourself, ठीक है? Yes, तो जिसके पास भी कृतज्ञता है, मतलब कि अगर आप दिल से, अगर आप कोई भी चीज के लिए ग्रेटफुल हैं तो फिर आपके पास जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा. कहीं ना कहीं हम लोग अपने पास्ट लाइफ में अभी तक हम ग्रेटफुल रहे हैं कि आज हमारी जिंदगी थोड़ी बहुत वैसे है जैसे हमको चाहिए. हो सकता है कोई ना कोई एरिया में अभाव हो, जैसा हो सकता है भाई बहुत लोग होते हैं जिनके रिलेशनशिप्स में अभाव है, या पैसे की दुनिया में अभाव है, या जितना उनको चाहिए वो उनके पास नहीं है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उस एरिया में अनग्रेटफुल रहे हैं. ठीक है,
there are different ways where how we can be grateful. ठीक है, there are very very different ways जहाँ पे हम grateful हो सकते हैं. जब हम किसी को appreciate करते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं वाओ तुमने बहुत अच्छा काम किया, तब हम उसको grateful हो रहे हैं, थैंक यू. जब हम किसी को प्यार देते हैं, प्यार ना वो रोमांटिक लव के अलावा भी प्यार हो सकता है. आप जब किसी को खुश होके स्माइल पास करते हैं, आप जब सड़क पर चल रहे हैं, आपने किसी को एक स्माइल पास कर दिया, हाँ, तो सामने वाले को अच्छा लगता है, दैट इज बीइंग ग्रेटफुल. आप जब भगवान जी की प्रार्थना करते हैं, हाँ, जब आप भगवान जी को हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं, दैट इज बीइंग ग्रेटफुल टू गॉड, राइट. जब आप बड़ों के सामने सिर झुकाते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, या आप जब छोटों को आशीर्वाद देते हैं, दीज आर ऑल डिफरेंट वेज दैट यू कैन बी ग्रेटफुल. ठीक है, तो जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो आप इन्हीं कोई ना कोई तरीकों से आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, या तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, है कि नहीं है. सो दीज आर द डिफरेंट वेज वेयर वी कैन बी ग्रेटफुल. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. And the revelation of one hidden word or cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they were ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally empathetic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. And if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. Yes. Yeah. अभी देखिए कुरान में क्या बोला गया है. और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा. इसका क्या मतलब है कि भगवान जी भी बोल रहे हैं, एंड आप जो भी रिलीजन माने, सब में एक ही बात लिखी हुई है. यहाँ पे उन्होंने कुरान का एग्जाम्पल दिया है, हमारे गीता में भी वही लिखा हुआ है कि यदि हम जो भी कुछ हमको मिला है उसके लिए हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, तो भगवान जी हमको रिवॉर्ड्स देते हैं. हाँ, जो हमको चाहिए वो हमको मिलता है. लेकिन अगर हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, अगर हम बोलते हैं तो क्या हुआ, ये है तो क्या हो गया, इसमें ग्रेटफुल होने की क्या बात है. आज मेरे को अगर हवा मिल रही है, अगर मेरे को धूप मिल रहा है, अगर मेरे पास रहने को घर है, मेरा एक बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे पास बहुत भरा पूरा परिवार है, तो क्या हो गया, सबके पास तो होता है, इसमें ग्रेटफुल होने का क्या बात है. अगर हम ऐसा बोलते हैं तो भगवान जी क्या बोलते हैं कि मेरा दंड इतना गंभीर होगा कि तुम्हारे पास जो है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Doesn't matter what religion you follow, whether श्वेता थोड़ा धीरे. okay. It doesn't matter what religion you follow or whether you're religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. Yes. Now what is the law? What is the law? हाँ, हर रिलीजन में इसी लॉ की बात की हुई है. कोई ना कोई अलग अलग भाषा में ना सब जन एक ही बात हम लोगों को सिखा रहे हैं. बस बात ये है कि इस बुक में हम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से वो ही बात को सीख रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स रीड व्हाट इज द लॉ. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life,
The law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so whatever you think, whatever you feel, you attract to you. Yes. Now, what is the law? This is the law of attraction. ठीक है? Law of attraction क्या बोलता है? Like attracts like. ठीक है? अगर आप मैग्नेट को, दो मैग्नेट को साथ में लेकर आते हैं ना, तो पॉजिटिविटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिविटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है कि नहीं? आपने ये स्कूल में किया होगा ना, ये एग्जाम्पल, ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे हम लोग, है कि नहीं? प्लस प्लस साइन अट्रैक्ट होता है, माइनस माइनस साइन अट्रैक्ट होता है, प्लस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, याद है कि नहीं? तो नहीं नहीं नहीं, इट्स जस्ट द अदर वे अराउंड ना, प्लस एंड माइनस अट्रैक्ट ना। नहीं ना, प्लस प्लस अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, दैट इज द रूल. ओके Okay, so anyways, that is the law. Universal law क्या बोलता है? Like attracts like. ठीक है? तो आज हम और आप, everything is energy. हम लोग सब एनर्जी हैं, आप भी एनर्जी हैं, मैं भी एनर्जी हूं. अगर आप ये, हम टेबल पे बैठे हैं, वो टेबल में भी एनर्जी है. आज हम कोई लाइट जला रखे हैं, वो लाइट में एनर्जी है. नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, हर चीज में एनर्जी है. ठीक है? एनर्जी क्यों है नॉन लिविंग थिंग में? क्योंकि हम जिस चीज से बने हुए हैं, हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं. आई थिंक वी ऑल नो दैट. वो ही 5 एलिमेंट से आपका वो नॉन लिविंग थिंग, आपका फोन है, वो भी उन्हीं 5 एलिमेंट से बना हुआ है. हर चीज वो ही 5 एलिमेंट से बना हुआ है. तो एवरीथिंग हैज एनर्जी. ठीक है? एवरीथिंग हैज एनर्जी. एंड आप जो सोचते हैं और आप जो महसूस करते हैं, वो एनर्जी आप दुनिया में देते हैं. थॉट्स मेक थिंग्स. ठीक है? ये प्लीज याद रखिएगा. आपकी जो सोच है और वो सोच में आप कितनी फीलिंग्स लेकर आते हैं, उससे आपकी जिंदगी बनती है. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. आप अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं. आप अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं. कभी आपने सोचा है, सुना है ये हिंदी मूवीज में डायलॉग सुना है, मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा? बहुत जन बोलते हैं ना, भगवान ने जो लिखा है तो क्या हो गया, मैं उसको चेंज कर दूंगा. कैसे चेंज कर देंगे? बाय योर बिलीफ. आप अपने बिलीफ के साथ अपने सोच को बदल के आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं. दैट इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. ठीक है? इन योर लाइफ द लॉ ऑपरेट्स ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स बिकॉज दे आर एनर्जी टू. फीलिंग्स आर द फ्यूएल. इसको याद रखिए कि जो भी आपके दिमाग में ना, दिन भर में 60,000 थॉट्स आते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ ज्यादा ही आते हैं, 60,000 थॉट्स इन अ डे. बट वो आप हर थॉट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. आप ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं सोचना है. इमीडिएटली आप कितना थॉट्स को कंट्रोल करेंगे? और आप हर उस थॉट में ना उतनी फीलिंग्स भी नहीं डालते हैं. आपके कुछ कुछ थॉट्स होते हैं जिनमें कि आपके कुछ ना कुछ फीलिंग्स आते हैं. ठीक है? हो सकता है पॉजिटिव फीलिंग्स हो सकता है कुछ सोच के आप बहुत खुश होते हो. हाँ, हो सकता है कुछ सोच के आपको कुछ खराब भी लगता हो. ठीक है? तो जितनी फीलिंग्स होंगी उस थॉट में, उतना वो थॉट आपके लाइफ में असर करेगा. ठीक है? हर थॉट आपके लाइफ को नहीं बनाता है. जिनमें फीलिंग्स होती हैं, वो ही थॉट आपके लाइफ को बदलने की शक्ति रखता है. ठीक है? तो वो थॉट आपको कैसे चेंज करना है? थॉट, वो फीलिंग आपको चेंज करनी है. फीलिंग को हमेशा कोशिश करना है कि वो फीलिंग पॉजिटिव रहे. ठीक है? फीलिंग को पॉजिटिव रखना है.
तो आपको जैसे ही आप देखें कि आप थोड़ा नेगेटिव जा रहे हैं, हाँ, तो आपको कुछ ना कुछ करके अपनी फीलिंग को बदलना है और वो पॉजिटिव वाली फीलिंग में आना है। दिन भर में कोशिश करिए कि आप अपने थॉट्स को थोड़ा मॉनिटर करें, और मॉनिटर करके कोशिश करें कि एटलीस्ट 60% टाइम हम पॉजिटिव रहें दिन भर में। कि रात को जब आप सोएं, तब आप अगर अपने दिन भर को स्कैन करें, तब आपको ये समझ में आए कि हाँ, मैं अधिकतर आज पॉजिटिव थी, मैं अच्छी भावनाओं में थी, आई वॉज फीलिंग गुड द मोस्ट ऑफ द टाइम टुडे। इसका एक्चुअली क्या है कि अगर आप 51% टाइम्स आप पॉजिटिव रहते हैं, तो यू आर, आपने अपना पलड़ा पॉजिटिविटी की तरफ झुका के रखा हुआ है। ठीक है, पर हम बोलते हैं कि आपको 60% टाइम्स आप यू हैव टू एस्पायर टू बी पॉजिटिव 60% ऑफ द टाइम। ठीक है, तो यू विल बी इन अ पॉजिटिव मोड मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द डे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something. He or she doesn't appreciate me, I can't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract most of those experiences. मोर ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। Sorry, more of जब आप सृष्टि को ये बोल रहे हैं ना, आप सृष्टि में बोल रहे हैं, आप थॉट्स, जब जैसे ही आप ये दिमाग आपके सॉरी, जैसे ही थॉट आपके दिमाग में आता है ना कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, ठीक है, जैसे ही आप ये बोलते हैं कि मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, मेरा स्पाउस अच्छा नहीं है, या मेरे बच्चे तो ना बहुत बहुत रकस क्रिएट करते हैं, एकदम बहुत इल मैनर्ड है, या मेरा मेरा बॉस ना बहुत चिल्लाता है मेरे ऊपर, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही हमने ये बोल दिया मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिवर्स में एक नेगेटिव भावना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला आई हैवंट गॉट इनफ मनी, वैसे ही हम एक नेगेटिव भावना यूनिवर्स में दे रहे हैं। तो क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से क्या होगा, जो मैं बोल रही हूं ना वो ही मेरे पास वापस घूम के आएगा। जैसे ही मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मेरे पास पैसों की कमी है, तो भगवान जी बोलेंगे ठीक है, इसके पास पैसों की कमी है तो इसको वो ही दे दो। ठीक है, आपके पास वो ही एक्सपीरियंसेस और आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि मेरे पास तो पैसे कम है। जैसे ही आपने बोला मेरे बच्चे बहुत रकस क्रिएट करते हैं, बहुत घर में बदमाशी करते हैं, और वैसे ही सिचुएशंस आएंगे जब आप बोलेंगे देखो और बदमाशी कर रहे हैं ये लोग, और बदमाशी कर रहे हैं। आपने कभी देखा है, आप बच्चे को बोलते हैं प्लीज देखो तुम ऐसे मत, यहाँ मत चढ़ो, ऐसे मत जंप करो, तुम गिर जाओगे, गिर जाओ, और वो बच्चा गिर जाता है। फिर क्या बोलते हैं आप, देखो मैंने तो बोला था तुम गिर जाओगे। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि वो तो मैंने ही अट्रैक्ट किया है। जैसे ही मैंने ये बोल दिया यूनिवर्स में कि तुम ऐसा मत करो तुम गिर जाओगे, वो तो हो गई। और फिर हम क्या बोलते हैं, मैंने तो बोला था, बट दिस इज बिकॉज मैंने बोला था वो हो गया। अगर हम उसको, हम थोड़ा अगर वो थॉट चेंज कर देते ना कि तुम शांति से बैठ जाओ, तुम तुमको नो नहीं, आई कैन नॉट से तुमको चोट नहीं लगेगी, बिकॉज चोट इज अगेन अ नेगेटिव वर्ड। व्हाट आई विल से इज कि तुम शांति से बैठ के खेलो, यू विल एंजॉय मोर। ठीक है, या हम अगर अपने मतलब जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैवंट गॉट इनफ मनी, अगर हम बोले कि नहीं मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरा आज का काम हो जाएगा। देखिए आई हैव चेंज माई थॉट, आई हैवंट गॉट इनफ मनी कि शायद मैं स्कूल के पैसे नहीं
फीस नहीं भर पाऊंगी। बहुत बार लोगों को चिंता होती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बच्चों की स्कूल की फीस पे कर सकूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स की बीमारी का बिल उठा सकूं। नहीं, बट अगर मैं उस थॉट को थोड़ा बदल दूं कि मेरे पास कम से कम इतने पैसे तो हैं कि मैं अपने परिवार को एक वक्त की रोटी दे सकता हूँ। जैसे ही मैंने मेरा थॉट पॉजिटिव किया ना, मैं मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती हूँ। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट थॉट्स। हम कैसा सोचते हैं, हमको कैसे अपने थॉट्स को बदलना है, नेगेटिव थॉट की जगह हमको कैसे पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Think about what you're grateful for. Like, I love my job. My family is very supportive. I had the best vacation. I feel amazing today. I got the biggest tax refund ever. Or I had a great weekend camping with my son. And you sincerely feel the gratitude. The law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as a metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. यस, You will end. Yeah. यस, प्लीज वेट। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, वाओ, ठीक है ना, बॉस गुस्सा करता है तो क्या हुआ, मेरा जॉब बहुत अच्छा है, सॉरी, मुझे बहुत मजा आता है मेरे जॉब में। जैसे ही आप ऐसा बोलते हैं ना, तो आपको और ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहां आप और अपने जॉब को अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है ना कि आपका मन चाहा जॉब ना हो वो, हाँ, हो सकता है आपको आपके बॉस से ना पटती हो, बट जैसे ही आप ये थॉट दिमाग में, मतलब अपने दिमाग में लाते हैं और यूनिवर्स में देते हैं ना कि मेरा जॉब बहुत अच्छा है, कम से कम इतनी सैलरी तो उससे मिलती है ना कि मैं अपने घर वालों को सेफ रख सकता हूँ, मैं उनकी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। जैसे ही आप ये थॉट देते हैं, आपको लाइफ में और ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे जहां आप और अपने जॉब को अप्रिशिएट करेंगे। माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। हो सकता है फैमिली में कोई एक दो जन हो जिनसे आपकी ना बनती हो, लेकिन जब आप ऐसा सोचते हैं कि ठीक है ना, बाकी जन तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बाकी तो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, देखो मेरे को कितना प्यार मिल रहा है, वो लोग मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। जैसे ही आप ऐसा बोलते हैं ना, वैसे ही क्या होता है, और ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे आप और उनको अप्रिशिएट करेंगे। आई हैड द बेस्ट वेकेशन एवर। ट्राई एंड यूज। दिन भर में हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको अच्छी ना लगी हो, किसी ने आपको डांट दिया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, हो सकता है आपको कहीं चोट लग गई। ठीक है, कोई एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं दिन भर में, सबके साथ होते हैं। ठीक है, बट जब आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करके, जब आप थोड़ी देर बाद ये सोचते हैं ना कि चलो वाह, आज सुबह मैंने ये अमेजिंग ब्रेकफास्ट किया था, जब आप उसको याद रखते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि मेरे साथ ये कुछ गलत हुआ था, तो आप क्या करते हैं कि आप वो ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस आप और अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वेन यू सिंसियरली फील द ग्रैटिट्यूड, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि आप अपने लाइफ में और वो पॉजिटिव बातें अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इट इज द सेम वे कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है मेटल को। कोई भी कहीं पे भी मैग्नेट होता है तो अपने सब जानते हैं ना, चुंबक जैसे अट्रैक्ट करता है, उस तरह से दिस इज यूनिवर्सल लॉ कि जो आप दे रहे हैं, जो भी भावना आप सृष्टि में दे रहे हैं, ये याद रखिए आप उसी मात्रा में वो ही चीज आप पाएंगे। इसमें कहीं कोई आप बोल नहीं सकते कि नहीं ये उस तरह से वर्क नहीं करता है, ये वैसे ही वर्क करता है, इट विल वर्क। आप जो देंगे, आप अगर किसी को डांटेंगे तो आप वो ही लाइफ में कहीं ना कहीं वापस आपके पास घूम के आएगा। अगर आप किसी को बहुत प्यार देंगे, कभी आपने देखा है कि आप एक बच्चे को हक करते हैं, वो बच्चा आपको और ज्यादा जोर से हक करता है।
और अगर आप कोई बच्चे को डांट देते हैं तो वो फट वहां से चला जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, आप हो सकता है आप आपने अपने स्टाफ को आज सुबह डांट दिया, ठीक है, और आप ऑफिस चले गए। आप रियलाइज भी नहीं करेंगे, कोई ना कोई सिचुएशन वहां पे ऐसी आएगी, या तो आपका क्लाइंट आपके ऊपर गुस्सा करेगा, या आपके बॉस डांट देंगे, या अगर आपका अपना बिजनेस है तो भी कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आपको कोई ऐसी खबर मिल जाए कि आपको लगे कि आज मेरा थोड़ा घाटा हो गया है, या कुछ इस तरह का। आप रियलाइज नहीं करेंगे वो किस लिए हो रहा है, बट वो होगा। अगर हम लोग अपने दिन को मॉनिटर करने लगेंगे ना, तो हम लोग रियलाइज करेंगे कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हम खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं। वी आर मेकिंग आवर लाइफ, कोई और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I've heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. यस, देखिए ये तो हम लोग सब जानते हैं ना, जो बोओगे वो काटोगे। सब हम लोग बचपन से ये सब सुनते आ रहे हैं, जो बोओगे वो काटोगे, यू रीप एज यू सो। हाँ, जो दोगे वो ही मिलेगा, है कि नहीं है? तो क्या बोल रहे हैं, सर आइजैक न्यूटन का क्या थ्योरी था, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं ना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। व्हेन यू अप्लाई द आइडिया ऑफ When you apply ग्रेटिट्यूड। the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you've given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the most sincerely and the most deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. यस, अब क्या आइजैक न्यूटन का क्या थ्योरी है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम उसको ग्रैटिट्यूड में अगर अप्लाई करें तो क्या होता है कि आप जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे, अगर आप इतना करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, अगर आप इतना करेंगे आपको इतना मिलेगा, अगर आप उससे भी ज्यादा करेंगे आपको उतना मिलेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एकदम स्पष्ट है, वेरी वेरी क्लियर, एंड मतलब बहुत एम्फेटिकली बोल रही हैं कि अगर आप जिस मात्रा में देंगे आपके पास उसी मात्रा में घूम के वापस आएगा। इट इज वेरी वेरी क्लियर। आप अप्लाई करके देख लीजिए, आप 2 दिन करके देख लीजिए, आप जिस मात्रा में देते हैं उसी मात्रा में आपके पास वापस आएगा। जो आप देंगे वो ही आपके पास घूम के वापस आएगा, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you've received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, thank you before he performed each miracle. यस, From the Australian, yeah. एक मिनट श्वेता। देखिए, अब अगर हम लोग बोले
तो हर रिलीजन में एक ही बात बोली गई है। हाँ, मोहम्मद ने कहा था आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओत्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सब जन। ग्रैटिट्यूड तो है ही, उसके साथ साथ क्या बोल रहे हैं, जॉय, हैप्पीनेस बोल रहे हैं ना। लाओत्सु ने कहा था कि रिजॉयस, कृष्णा ने कहा था ही एक्सेप्ट्स विद जॉय, बुद्ध ने कहा था यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। जितना आप खुश रहते हैं, हैप्पीनेस क्या करता है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखें तो हैप्पीनेस क्या करेगा, व्हेन यू आर हैप्पी क्या होगा, यू अट्रैक्ट मोर सिचुएशंस टू बी हैप्पी। ठीक है, जब आप दुखी होते हैं तो क्या होता है, यू अट्रैक्ट मोर सिचुएशंस वेयर यू विल बी नॉट हैप्पी। ठीक है, तो हर उस चीज के लिए हम लोगों को खुश होना है जो हमको मिली है। आज हम ये क्लास कर रहे हैं बी हैप्पी, कि यू हैव आईज टू सी, यू हैव ईयर्स टू हियर, हाँ, you were able, you were healthy enough to wake up in the morning, be happy for everything, wow। हर चीज को देख के क्या बोलना है, वाओ। सुबह उठ रहे हैं, वाओ क्या ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, वाओ क्या लवली सनलाइट है, चिड़िया चहचहा रही है, वाओ क्या बढ़िया साउंड है, बारिश की आवाज हो रही है, वाओ हर चीज के लिए वाओ। फूल दिख रहे हैं, वाओ। जितना आप वाओ दे रहे हैं, जितना आप खुशी दे रहे हैं यूनिवर्स में, आप उतना अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या करना है, आज हम लोग एक तो वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच वी लव टू डू। म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, वॉकिंग पे जाना अच्छा लगता है, घास पे चलना अच्छा लगता है, जो भी कुछ कुकिंग करना अच्छा लगता है, जो भी कुछ अच्छा लगता है, बच्चों से बात करना अच्छा लगता है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू लव टू डू। ठीक है, बिकॉज दीज थिंग्स आर योर मूड शिफ्टर्स। जैसे ही आप नोटिस करें कि आप थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं, you will use these mood shifters to bring you back to positivity। ठीक है, अब से एक हम लोग ये मूड शिफ्टर्स का लिस्ट बनाएंगे। दूसरा, आज हम क्या करेंगे, हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा मॉनिटर करेंगे। जैसे इट विल टेक प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आपने सुन लिया और हम कर पा रहे हैं, नहीं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट हम प्रैक्टिस करेंगे, ये हम कोशिश करेंगे हम अपने थॉट्स को मॉनिटर करें। और जैसे ही हम पाए कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव भी हम बहुत तरीके से होते हैं, हो सकता है वी आर जेलस, वी आर एनवियस। जेलस होंगे तो क्या होगा, हम और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जहां हम जेलस होंगे। अगर हमको डर हो रहा है, अगर हमको कोई चीज से डर लग रहा है और हम उसी में घुसते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हम अपने आप को डर में घुसा रहे हैं, हम ऐसा और सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जहां हमको डर होगा। ठीक है, एंजाइटी, चिंता, गुस्सा, ये सब नेगेटिव भावनाएं हैं। ठीक है, आई विल सेंड यू अ लिस्ट, हम एक पूरा चार्ट भेज देंगे। इनफैक्ट अभी हम
शेयर कर सकते हैं, एक और न्यू शेयर भी है, देखिए। ठीक है, आई विल शेयर दिस लेटर, कोई बात नहीं है। तो उसमें सारा लिखा हुआ है, तो वी विल ट्राई एंड मॉनिटर आवर फीलिंग्स, और जैसे ही हम नोटिस करें कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, हमको वो अपने मूड शिफ्टर्स यूज करके हमको पॉजिटिविटी में आना है। दिस इज फॉर लाइफ, ठीक है? ये सिर्फ आज के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये लिस्ट आपको बनानी है, ये लिस्ट आपको अपने साथ हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये जो हमारा कोटेशन है, whoever has gratitude will be given more and he and she will have an abundance, इसको आपको बोल्ड लेटर्स में कहीं ऐसी जगह लिख के रखना है जहां आप इसको बार बार देखेंगे, ठीक है? दिस हैज टू बी रिटन and should be in front of your eyes always. तो जैसे ही आपको लगे कि आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, दिस कोट विल रिमाइंड यू कि आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है? ये दो चीजें हम लोगों को आज करना ही है, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू। Just move this. I mean, the list is there. यहाँ मेरे स्क्रीन में तो कुछ नहीं आ रहा, आपके कुछ आ रहा है? अच्छा, ये है ना, इसको मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है? ये हम लोग बाद में देखेंगे। शेयर स्क्रीन, यस। Yeah. From the Australian Aboriginals to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee and Cherokee to the Tahitians, Eskimo and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. यस, When you arrive, yeah. एक मिनट, क्या बोल रहे हैं ना कि आप जहां पे भी चले दुनिया में, हर रिलीजन, हर क्लैन, हर कल्चर आपको बोलता है कि आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. Yes, If you if you see no see no reason, reason for giving thanks, the fault lies with yourself. अब ये टेकिम से एक अमेरिकन लीडर हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर हमको हमारी लाइफ में जब हम सुबह उठते हैं, अगर हमको कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखती है थैंक यू बोलने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए, तो वो मतलब वो हमारे ऊपर है। द फॉल्ट लाइज विद इन आवर सेल्फ। भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है ग्रेटफुल होने को। इट इज अस हु कैन नॉट सी कि हम क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, हो सकते हैं, ठीक है? क्या अगर उसको हिंदी में बोले, जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है, ठीक है? आप सुबह उठ रहे हैं, बी ग्रेटफुल कि आपकी सांसें चल रही हैं। There are so many people in the world who don't get up in the morning, isn't it? हाँ, सुबह लाइट मिल रही है आपको, आप वॉशरूम जा रहे हैं, आपके पास लाइट का स्विच है, बाथरूम में लाइट है, आप सब कुछ देख पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, एक प्राइवेट बाथरूम है आपके पास। देर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु डू नॉट हैव अ बाथरूम। उनको कहाँ कितनी कितनी दूर जाना पड़ता है एक लोटा लेके, है कि नहीं है? हाँ, तो अगर हमको ग्रेटफुल होने के लिए चीजें नहीं मिल रही हैं तो दोष किसका है? हमारा अपना है। भगवान ने तो हमको बहुत कुछ दिया है ग्रेटफुल होने के लिए, ठीक है? तो ये बस 2 पैराग्राफ्स हैं, ये इतना सा पढ़ लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है? हिस्ट्री इज laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung,
Newton, Einstein, and many, many more. यस अब Albert देखिए कोई भी, एक मिनट श्वेता, कोई भी फील्ड ले लीजिए, वेदर इट इज साइंस, इट इज कल्चर, सोशल वर्क, कोई को भी ले लीजिए, कहीं पे भी मार्टिन लूथर किंग भी है तो आइंस्टाइन भी है, मदर टेरेसा है तो गांधी भी है, शेक्सपियर भी है, हर कोई आपको बोल रहा है कि ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। आपने जो भी पाया, जितने भी बड़े लोग हैं, अगर आप बॉलीवुड के भी अगर आप सेलिब्रिटीज को सुनेंगे ना, तो वो लोग भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड। यू लिसन टू बिल गेट्स, यू लिसन टू, कभी अगर आप रतन टाटा को सुनिए, आप जिनको भी सुनिए, सब जन ना एक ही बात बोलते हैं, ग्रेटफुल होना चाहिए। वो लोग ना अपने अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बात करते हैं, वो लोग अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं। दे डोंट टॉक अबाउट व्हाट दे डोंट हैव, दे टॉक अबाउट व्हाट दे हैव बीन गिवन। उनके पास क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो लोग पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, आप कोई भी इंसान का, आप बड़े इंसान का, जिनको आप लुक अप टू करते हैं, उनका आप अगर वीडियो सुनेंगे, हाँ ऑडियो सुनेंगे, आप देखेंगे दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड। ठीक है, आप बहुत सारे, अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी मैं वीडियो देखती हूँ, आई हैड, मुझे मिलेगा तो मैं भेजती हूँ, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो लोग किस तरह से अपने लाइफ में पॉजिटिविटी, उनको जो चाहिए था उन्होंने अट्रैक्ट किया है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over hundred times a day for the work they had done. यस, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये जो है ना, थैंकिंग 100 टाइम्स अ डे, उसके ऊपर तो रोंडा बर्न ने पूरी एक चैप्टर लिखी है जो आएगा बाद में, दैट इज कॉल्ड मैजिक फुटस्टेप्स। पूरा एक चैप्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो हमको बोला है कि कम से कम, मतलब वो दिन में 100 बार थैंक यू बोलते थे। क्या हम एक बार भी बोलते हैं? हाँ, आप बोलेंगे हम तो बोलते हैं, हम तो बहुत बार बोलते हैं। हम लोग सब बोलते थे बिफोर वी डिड मैजिक बुक, हम लोग सब एक ही बात बोलते थे, हम लोग बहुत बार दिन में थैंक यू बोलते हैं। कोई हमको कुछ लाके देता है हम थैंक यू बोलते हैं, कोई हमारे लिए कुछ करता है हम थैंक यू बोलते हैं, हाँ हमको बर्थडेज में गिफ्ट मिलते हैं हम थैंक यू बोलते हैं, है कि नहीं है? हम लोग सब बोलेंगे ये बात, बट क्या हम दिल से थैंक यू बोलते हैं, वो फीलिंग के साथ बोलते हैं? हाँ, आज मेरा बर्थडे है, मेरी फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट दिया, मैं देखती भी नहीं हूँ क्या है, मैं उसको क्या बोलती हूँ? थैंक यू। हाँ बट थैंक यू तो मैंने बोला, बट क्या मैंने दिल से बोला थैंक यू? वो दिल से आवाज निकली है? नहीं, इट इज ओनली माई माउथ विच इज अटरिंग द वर्ड। मेरे दिमाग ने क्या बोला कि गिफ्ट मिला है, मेरे को थैंक यू बोलना है, क्योंकि बचपन से मम्मी ने सिखाया है थैंक यू बोलना गुड मैनर्स है, तो बोल दो। किसी ने तुमको गिफ्ट दिया है तो तुमको बोलना चाहिए बेटा, तो इसीलिए मेरे को मालूम है मेरे को बोलना है, दिमाग में वो कंडीशनड है, मैंने बोल दिया। मेरा दिल कहीं इन्वॉल्व नहीं है, फीलिंग्स कहीं इन्वॉल्व नहीं है, फीलिंग्स दिल में जागती है ना, फीलिंग्स तो दिल से आती है, कोई भी फीलिंग हो, गुस्सा होता है तो भी दिल में आता है, प्यार होता है तो भी दिल में आता है, खुशियां होती है तो भी दिल में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो वो फीलिंग जो है वो नहीं आता है, तो अब हम लोगों को सीखना है कि फीलिंग्स कैसे लाना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed through Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. यस, अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टोरी पढ़ेंगे ना, तो उनको ना
मतलब उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ स्लो चाइल्ड। उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, और उनकी मदर ने उनको ये नहीं बोला कि क्यों निकाल दिया गया था। उनकी मदर ने उनको बोला कि तुमको इतना आता है कि उन तो स्कूल में तुमको पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं। जस्ट लुक एट द वे थॉट्स मेक अ डिफरेंस। ठीक है, आज आपका बच्चा के लिए अगर प्रिंसिपल स्कूल में बुलाएंगे ना, तो आप फर्स्ट थिंग जाने के पहले आप बच्चे को क्या बोलेंगे? क्या गलती करी तुमने, क्या बदमाशी करी तुमने कि तुम्हारा पेरेंट कॉल हुआ है? हम्म। यहाँ तो उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया था, एंड जब वो अपनी माँ को पूछता है, मम्मी हम क्यों जा रहे हैं स्कूल से बाहर, उसकी मम्मी ने बोला, बेटा तुमको इतना आता है ना कि यहाँ पे तुम इनको तुम्हारे को पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, मैं तुमको पढ़ाऊंगी घर में। तो he was brought up with the thought that he is a very intelligent child, he knows everything, and he was so grateful for everything कि वो जो चाहते थे उनको वो ही मिलता था। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton recently voted the greatest contributor to science and humankind, and was also grateful to those men and women who lived before him. Yes, please continue. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. And yet, still, gratitude's power is unknown to most people today. Because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. यस, अब देखिए सर आइजैक न्यूटन क्या बोल रहे हैं कि उनको जब पूछा गया था ना कि आप कैसे इतनी सारी डिस्कवरीज और इतना आपका नाम हो गया, आप कैसे पा लिए इसको, तो उन्होंने क्या बोला? आई हैव स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द जायंट्स। उनका क्या मतलब है कि किसी और के कंधे पे पांव रख के उन्होंने ये सब कुछ हासिल किया है। किसी और का कंधा कौन होगा? जो भी उनके पहले जितने भी लोग आके गए हैं, जिन्होंने भी उनको इतना कुछ सिखाया है, जिनसे भी उन्होंने कुछ कुछ सीखा है। ठीक है, क्योंकि उनके पहले और भी साइंटिस्ट आके गए हैं, और भी लोग ऐसे आके गए, हो सकता है उनके टीचर्स हो सकता है उनके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, जो भी कुछ, जिनसे भी उन्होंने कुछ भी सीखा है, उन्होंने उन लोगों के बारे में बात करी है। दैट आई हैव स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। मैं उन बड़े बड़े लोगों के कंधों पे खड़े होकर मैंने ये कुछ पाया है। ठीक है, तो आज आप जो भी बिजनेसमैन हो, फेमस बिजनेसमैन हो, साइंटिस्ट हो, फिलोसोफर्स हो, जिनको भी पूछेंगे, वो लोग सब एक ही बात बोलेंगे कि वी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। प्रैक्टिस इज द की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, प्रैक्टिस कहाँ से आएगा? दिल से आएगा। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर। ठीक है, टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम माय डिस्कवरी। तो आज हमने जो भी कुछ किया, आई होप इट वाज क्लियर, सबको समझ में आया। कुछ अगर ऐसा है नहीं समझ में आया, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई वुड रिकमेंड, हमने जितना तक पढ़ा है प्लीज उसको आप लोग एक बार वापस से पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आता है, कहीं लगता है कि यस शालिनी यू वर रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, तो भी प्लीज मुझे आके बताइए, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग। अगर आपको कुछ ऐड करना है आप भी ऐड कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है, वी विल डू आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर एवरी डे, एंड वी विल डू अफर्मेशंस एवरी डे। अफर्मेशंस क्या होता है? अफर्मेशन होता है कि हमारा कुछ बिलीफ है जो हम बचपन से सुनते सुनते हमारे अंदर घर कर गया है। जैसे कुछ लोगों का बिलीफ होता है कि मेरे पास तो इतने पैसे कभी नहीं आएंगे कि मैं अपने सभी सपनों को पूरा कर सकूं। या हमारा एक बिलीफ है कि बड़े होंगे, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे घुटनों में दर्द आते जाएगा। ठीक है, लेडीज को कैल्शियम की कमी होती है। ये सब हमारे बिलीफ्स हैं जिनसे हम
सुन सुन के बड़े हुए हैं, राइट? तो हम लोग अफर्मेशंस डेली कुछ ना कुछ करेंगे। 3 अफर्मेशन करेंगे जो हम डेली करेंगे, और हम उनमें ऐड करते जाएंगे एज एंड व्हेन जो जो हमको करना है। ठीक है, अफर्मेशंस करेंगे और प्रेयर करेंगे। सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिन भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनको याद करिए और उनको थैंक यू बोलिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मेरे को रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे को इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे हम्बल और लविंग बनाए रखने के लिए, ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के 5 तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार भगवान जी, मुझे इतने प्यारे, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए, उनको हमेशा खुश रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे को हरदम हेल्दी फिट रखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए, मेरे को हमेशा ब्लेस करने के लिए। बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज हाथ अपने ऊपर करिए, आसमान की तरफ, अबंडेंस पोज, एकदम खुले हाथ, अबंडेंस पोज। हम भगवान जी को अफर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान जी को, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे Is the is best the day of my life. best day of my Best life. day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. That I strive for I today. am I open and receptive am to an all open the good coming my way. I am open and receptive to all the good all the coming goods my way. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much. तो आज का हमारा क्या क्या टास्क है? एक, हम अपने मूड शिफ्टर्स की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। दूसरा, हमको क्या करना है? monitor your thoughts. मॉनिटरिंग आवर थॉट्स। अच्छा, एक जर्नल अपने लिए बनाना है। हुएवर, अगर आप मैजिक बुक फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको एक नोटबुक, कोई डायरी या कोई जर्नल नया लेंगे, हाँ, उसको रेडी रखना है। हम लोगों को परसों से वो लगेगा। जर्नल और पेन हमेशा एक होना चाहिए। एक पत्थर का जुगाड़ करना है, रॉक लेंगे, नेचुरल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आपके हाथ में फिट हो जाए,
ठीक है, नेचुरल रॉक हो, मार्बल हो सकता है, कोई ग्रेनाइट हो सकता है, कोई जो सड़क पे अपने जो पेबल्स रॉक्स नहीं देखते हैं वैसा भी कुछ हो सकता है, कोई प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन भी हो सकता है। प्लास्टिक मत ले, कोई भी जो मैन्युफैक्चर होता है ना फैक्ट्रीज में उस तरह का मत लीजिए, कोई जो जमीन से निकलता है ना वैसा लीजिए, अर्थ एलिमेंट का, ठीक है, वैसा कोई रॉक लीजिए जो आपके हाथ में फिट हो जाए, आपको पकड़ के अच्छा लगे, बहुत भारी नहीं होना चाहिए, कहीं कोई पॉइंटेड एजेस नहीं होने चाहिए जो आपको लगे, क्योंकि ये आप पकड़ के सोएंगे तो फिर आपको अच्छा फीलिंग आना चाहिए इसको पकड़ के। तो कई बार क्या होगा ना कि आपको 4-5 रॉक पकड़ के देखना होगा, जो आपको बेस्ट आपके हाथ में लगे वैसा लीजिएगा, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2-3 डेज का टाइम, आप लोग आराम से जुगाड़ करिए, हम लोगों को ये डे 2 में लगेगा। आज हम लोगों का डे 0 था, डे 0 का भी फर्स्ट डे था, ठीक है। कल कल हम लोग अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी, थैंक यू श्वेता फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर अस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कल हम लोग 5:30 पे मिलेंगे। थैंक यू शालिनी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस यस श्वेता। There were 2 lines you told me we have to make it in bold, so that it is visible every time. Can you just message me later? Or in यस the यस, group? आई विल डू दैट, मैं Thank अभी you. लिख दूंगी। Thank you ठीक so है, much. थैंक Thank यू, you. बाय बाय। थैंक यू, बाय।